students, welcome to Shri Siddh Vidyapith School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin a new chapter, Mowgli and his family. It's chapter number 3. So in this chapter we are going to read a story of a young boy named Mowgli who is raised by a wolf family, and Sher Khan, a large tiger who is looking for Mowgli to kill him. So in this story we are going to read how Mowgli overcome by the Sher Khan, how wolves taught him to fight with Sher Khan and live of his own, and how he totally made wolves his family, how he become a jungle boy. He's a man baby and who become a jungle boy named Mowgli. The story is written by Joseph Rudyard Kipling, was a British writer, poet and novelist. He was born in India. Okay, so students, use your prescribed textbook for better understanding. So let's begin the chapter. In this extract from the Jungle Book by Rudyard Kipling, a human cub is adopted by a pack of wolves. Read and find out how. So in this chapter we are going to this extract is small extract is taken from the Jungle Book by Rudyard Kipling. The Jungle Book is a story book written by Rudyard Kipling, and there is some small extract was taken from that book. In this chapter we are going to read how human cub Mowgli was adopted by a pack of wolves. Okay, the wolves, how he adopted the human cub. Father Wolf waited till his cubs could run a little, and then on the night of the pack meeting took them and Mowgli and the mother wolf to the Council Rock, a hilltop covered with stones and boulders where 100 wolves could hide. सो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फादर वुल्फ जो था वो अपने छोटे छोटे बच्चों यानी वुल्फ छोटे छोटे वुल्फ्स को वेट कर रहा था कि वो कब दौड़ेंगे, और पैक मीटिंग मतलब सारे वुल्फ्स जितने भी जंगल में वुल्फ सब हैं उनके बीच में एक पैक मीटिंग होता है. तो उस रात पैक मीटिंग में फादर वुल्फ बच्चों को लेके पैक मीटिंग में लेके गए और मोगली और मदर वुल्फ जो है वो काउंसिल रॉक पे गई. हिल टॉप, काउंसिल रॉक कहाँ है, वो एक हिल टॉप में मतलब एक ऊंचा एक पहाड़ के ऊपर है जो कि स्टोन्स के साथ कवर्ड है. मतलब वहाँ से बहुत सारे पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर सारे हैं. तो जहाँ पर ही एक साथ 100 वुल्फ्स एक साथ छुप सकते हैं. Akela, the great guy lone wolf who led all the pack by strength and cunning, lay out at full length on his rock, and below him sat 40 or more wolves of every size and color, from bagged color veterans who could handle a buck alone to young black 3 years olds who thought they could. So Akela, the great grey lone wolf, अकेला नाम का एक ग्रेट बहुत ही बड़ा, मतलब वो बहुत ही ग्रेट, मतलब वो लाइक ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड ग्रेट ग्रे लोन वुल्फ है. वो लोन मीन्स वो अकेला, इसीलिए उसका नाम शायद अकेला है. हु लेड ऑल दी पैक, मतलब वो अकेला सारा वुल्फ्स को संभालता है. वो सारा वुल्फ्स का लीडर है, मतलब वो लीडरशिप करता है. तो उसके स्ट्रेंथ और कनिंग, उसकी जो ताकत और उसकी चालाकी से ही ये सारे मतलब वो उस वुल्फ्स को दुश्मन से बचा पाता है. उसके अंडर में 40 और मोर, और भी 40 भी है, 40 से ज़्यादा वुल्फ्स, हर तरह के साइज़ कलर के वुल्फ्स उसके अंडर में रहते हैं. बैगर्ड कलर, कुछ और भी कलर्स के रहते हैं. वेटरन मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वुल्फ भी उसके अंडर में रहते हैं. तो वो किस हेल्प में आते हैं वेटरन, वो छोटे छोटे ये जो 3 साल के वुल्फ्स होते हैं उनको संभालने में काम आते हैं. The lone wolf had led them for a year now. He had fallen twice into a wolf trap in his youth, and once he had been beaten and left for dead, so he knew the manners and customs of men.
सो ये जो अकेला है लोन वुल्फ, उसे वो अब इन सारे वुल्फ्स को 1 साल से लीड कर रहा है। उसने एक बार वुल्फ ट्रैप में भी फंस गया था अपनी जवानी में, अपने यूथ में उसने जो ट्रैप वुल्फ्स के लिए बिछाते उसमें भी फंस गया था। तो उससे बहुत मारा, तो उसको इतना मारा कि वो मतलब डेथ तक उसका लाइफ चल गया था। लेकिन इसीलिए उसको सारा मैनर्स और कस्टम्स पता है, मतलब सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, कैसे रहना, कैसे बच के रहना, सब कुछ। सो इसलिए ये सारे वुल्फ्स, जितने भी जंगल में वुल्फ्स है, वो सब इसके अंडर में रहती हैं, सुरक्षित। There was very little talking at the rock. The cubs stumbled over each other in the center of the circle where their mothers and fathers sat. And now and again, a senior wolf would go quietly to a cub and look at him carefully and return to his place on noiseless feet. So अब उस रॉक के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती, इन लोग सारे बहुत कम बात करते हैं। और जो छोटे छोटे कब्स हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे, वो एक दूसरे के ऊपर कूदते रहते हैं उस सर्कल के बीच में। मतलब वो सर्कल बना है, वो मदर्स और फादर्स सारे एक सर्कल बना है जिसके बीच में ये कब सारे खेलते रहते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को मतलब रात भर कोई भी एक सीनियर वुल्फ, मतलब वही कोई भी बड़ा देखता है कि कोई कब मिसिंग ना हो, कोई कब एकदम सेफ हो किसी दुश्मन के मतलब कोई कब मिस ना हो जाए, दुश्मन के पास चले जाए, तो वो रात भर कोई ना कोई एक देखते रहते हैं कब्स को। ओके, समटाइम्स अ मदर, और देखने के बाद फिर अपने प्लेस में वापस आ जाते एकदम चुपचाप। Sometimes a mother would push her cub far out into the moonlight to be sure that he had not been overlooked. और कभी कभी ये मदर वुल्फ क्या करती है, मतलब जैसे कि कोई सीनियर आता है रात में कब्स को देखने के लिए कि वो सेफ़ है कि नहीं, तो इसीलिए मामा वुल्फ क्या करती है, अपने बच्चों को कभी कभी मूनलाइट में ढकेल देती है, पुश कर देती है, ताकि वो मतलब उनकी नज़र में रहे, वो सीनियर्स के नज़र में रहे और उन्हें ये ना लगे कि ये बच्चा को अनदेखा किया जा रहा है। Akela from his rock would cry, "You know the law, you know the law. Look well, O wolves," and the anxious mother would take up the call, "Look well, O wolves." अकेला जो है वो रॉक के ऊपर से चिल्लाता है, यू नो द लॉ, मतलब तुम तो जानती हो रूल्स, लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस जंगल। तो अब तुम लोग अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान से रखो ताकि कोई भी बच्चा मिस ना हो पाए, कोई भी कब इस रात में मिस ना हो पाए, मतलब कोई उसे हमला ना कर दे, कोई एनिमीज उसके ऊपर। सो मदर्स भी सारी अलर्ट हो जाती है और उस वुल्फ्स का वो क्राई सुन के वो भी अलर्ट होकर सोती है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। At last, and the mother wolf's neck bristles lifted as the time came, the father wolf pushed Mowgli the frog, as they called him, into the center where he sat laughing with the cubs and playing with some pebbles that glistened in the moonlight. So at last the mother wolf अपने नेक्स को उठाकर देखी, जब टाइम आया तो फादर वुल्फ ने क्या किया, मोगली द फ्रॉग, उन लोग मोगली को द फ्रॉग बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। उसने मोगली को भी उस सर्कल के सेंटर में बैठा दिया और वो उस कब्स के साथ खेलना शुरू कर दिया, उस लोग के साथ खेल रहा, हंस रहा और सम पेबल्स के साथ भी खेल रहा जो कि मूनलाइट में चमक रहे थे। Akela never raised his head from his paws, but went on with the monotonous cry, "Look well!" A muffled roar came up from behind the rocks, the voice of Sher Khan crying. Akela never raised his head. अकेला कभी भी अपना मुंडी उठाता नहीं है from his paws, मतलब अपने paws के ऊपर से, पर वो चिल्लाता ज़रूर है। मोनोटोनियस क्राई मतलब वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, हमेशा देखो अपने चारों तरफ देखो, लुक वेल, वो आगाह करते रहता है, मतलब उन सबको पहले से वुल्फ्स को अलर्ट करते रहता है। अ मफल्ड रोर केम अप फ्रॉम बिहाइंड द रॉक्स, तो एक बहुत ही मफल्ड रोर मतलब बहुत ही एक
भारी सा आवाज़ रॉक्स के बिहाइंड से सुनाई पड़ रहा था। तो वो किसका वॉइस था? शेर खान। शेर खान चिल्ला रहा था। शेर खान कौन है? वो एक टाइगर है। The cub is mine, give him to me. What have the free people to do with the man's cub? अब वो क्या बोल रहा है? वो जो कब है वो मुझे दे दो। कौन कब? मोगली। वो तो अभी बच्चा था ना, तो वो बोल रहा है वो कब मुझे दे दो, वो मेरा है। मतलब फ्री पीपल का what have the free people to do with man's cub? फ्री पीपल कौन है? वुल्फ्स है। मतलब तुम लोग का क्या काम है इस मैन कब का? मुझे दे दो। वो क्या करेगा? उसे खा जाएगा। तो शेर खान मोगली को मांग रहा है। अकेला never even twitched his ears. All he said was, "Look well, oh wolves, what have the free people to do with the orders of any? Save the free people, look well." बट अकेला का एक ही ये था, वो कभी उसका बातों पे ध्यान ही नहीं देता था, वो कभी सुनता ही नहीं था उसके बातों को लेके। वो एकदम मतलब मतलब उतना ध्यान नहीं देता था शेर खान की बातों को, और वो बस ये बोलता था वुल्फ्स को कि अपने चारों तरफ देखते रहो, अलर्ट रहो, और ये फ्री पीपल का क्या करना है किसी का ऑर्डर सुन के। मतलब व्हाट फ्री पीपल डू विथ लिसनिंग टू अदर्स ऑर्डर्स। वो शेर खान का ऑर्डर सुन के क्या करेंगे? दे शुड लिसन टू देयर ओन लीडर्स ऑर्डर। तो उसके बाद वो बोलता है सेव द फ्री पीपल। वो उसका बस एक ही काम है, अपने को बचा के रखो, अपना को बचा के रखो, अपने लोगों को बचा के रखो, और चारों तरफ हमेशा अलर्ट रहो। There was a chorus of deep growls, and a young wolf in his 4th year flung back Sher Khan's question to Akela. What have the free people to do with the man's cub? Now the law of the jungle lays down that if there is any dispute as to the right of a cub to be accepted by the pack. So अब अकेला को क्वेश्चन कर रहा था कि फ्री पीपल का क्या काम है इस मैन कब का। अगर हम लोग जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये कब का राइट जो है हम पैक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। He must be spoken for by at least 2 members of the pack who are not his father or mother. और इस कप के हक में किसी 2 पीपल को मेंबर्स को बात करना बहुत ज़रूरी है। वो उसके मदर फादर नहीं होना चाहिए, कोई और 2 मेंबर्स, पैक के 2 मेंबर्स उसके तरफ से बात करना है। Who speaks for this cup? asked अकेला। अब अकेला पूछे कौन बात करेगा इस मैन कप के लिए। Among the free people who speaks, there was no answer, and Mother Wolf got ready for what she knew would be her last fight if things came to fighting. तो among the free people, हम free people के बीच से कौन बात करेगा इस कप के लिए? There was no answer, तो कोई आंसर नहीं दिया। तो ये Mother Wolf जो है वो रेडी हुई, वो बात करने के लिए वो आगे आई। वो बोले अब जो होगा देखा जाएगा, अगर फाइट भी होगा तो वो फाइट करेंगे, लेकिन इस कप के लिए वो बात जरूर करेंगे। Move on to next. Then the only creature who is allowed at the pack council, Bhalu, the sleepy brown bear who teaches the wolf cubs the law of the jungle. Old Bhalu, who can come and go when he pleases because he eats only nuts and roots and honey, roses upon his hind quarters and grunted. तो अब एक ही क्रिएचर है जो इस इज अलाउड एट द पैक, और इस पैक में अलाउ किया जाता है, वो है भालू, और वो ही है जो इस मैन कप के लिए बात करेगा। तो वो है भालू, वो एक स्लीपी ब्राउन बियर है जो ये वुल्फ कप्स को जंगल का लॉ सिखाता है। ये जो छोटे छोटे कप्स है वुल्फ के, उनको ये जंगल का लॉ बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये ओल्ड भालू जो है कभी भी आता है, और जब उसका मन करे आता है, जब उसका मन करे चले जाता है। वो सिर्फ नट्स, रूट्स और हनी खाता है। The man's cub, he said. I speak for the man's cub. There is no harm in a man's cub. I have no gift of words, but I speak the truth. Let him run with the pack and be entered with the others. I myself will teach him. So ये भालू क्या आते पूछा मैंस कब उसने कहा मैं बात करूँगा इस मैन कप के बारे में, इसमें तो कोई बुराई नहीं है और इससे कोई हार्म भी नहीं है इस मैन कप को लेके। उसके पास शब्द नहीं है कहने को, लेकिन वो कह रहा है मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ।
आने दो इसे हम वुल्फ पैक में आने दो और अदर्स के साथ रहने दो, मैं सिखाऊंगा इसे जंगल का रूल्स और इस कैसे रहना है कप्स के साथ, बाकी वुल्फ कप्स के साथ। उसने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, किसने, भालू ने। वी नीड येट अनदर, सेड अकेला। भालू has spoken and he is a teacher for the young cubs who speaks besides भालू। तो अकेला कह रहा वी नीड येट अनदर, अब हमें दूसरा चाहिए। तो भालू ने बोला वो भालू हमारा टीचर है, वही तो हम यंग कब्स को सिखाते हैं कि कैसे जंगल के रूल्स। तो उनके बारे में कौन बात कर रहा है, भालू के बारे में। A black shadow dropped down into the circle. It was Bagheera, the black panther, inky black all over, but with the panther marking showing up in certain lights like the pattern of watered silk. तो अब the black shadow आया, उस सर्किल में आया। वो कौन था, वो भगीरा था, the black panther। उनके ब्लैक पैंथर का जो बॉडी था वो इंकी ब्लैक था पूरे बॉडी में, और उसके ऊपर पैंथर मार्किंग्स थे जो कि वो लाइट में दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे, लाइक अ सिल्क, वाटर्ड सिल्क जैसा दिख रहे थे। Everybody knew Bagheera and nobody cared to cross his path, for he was as cunning as Tabaqui and as bold as wild buffalo and as reckless as the wounded elephant. सब बगीरा को जानते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बगीरा के बात को काटे, उसकी रास्ता पे आ रहे हैं। तो वो बगीरा बहुत ही चालाक था और बहुत ही बोल्ड था, लाइक अ वाइल्ड बफेलो, मतलब बहुत ही फियर्स, और बहुत ही रेकलेस था, एक वाउंडेड एलिफेंट की तरह, मतलब बहुत ही केयरलेस था। But he had a voice as soft as wild honey dripping from a tree and a skin softer than down. लेकिन उसका वॉइस जो था वो बहुत ही सॉफ्ट था, लाइक जैसे शहद टपक रही हो उसके मुंह से, सॉरी ट्री से, और उसकी स्किन जो थी बहुत ही सॉफ्ट थी, लाइक अ डाउन। वो अकेला and here the free people, he purred. I have no right in your assembly, but the law of the jungle says that if there is a doubt which is not a killing matter in regard to a new cub, the life of that cub may be bought at a price. तो अब वो अकेला, और बगीरा किसको कह रहा है, अकेला को कह रहा है, और ये फ्री पीपल को कह रहा है आई हैव नो राइट इन योर असेंबली, मुझे कोई हक नहीं है आपकी असेंबली में आके कुछ बोलना है, बट एज अ लॉ ऑफ जंगल मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है इस कब को मारने में, तो इसे अगर आपको लगता है कि ये मैन कब का लाइफ आपको भारी पड़ रहा है, तो आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। एंड द लॉ डज नॉट से हु मे और मे नॉट पे दैट प्राइस, एम आई राइट। तो वो कह रहे हो अब लॉ तो ये नहीं कहता है कि कौन किसे, आप अगर आपको ये भारी पड़ रहा है तो आप उसे दे दीजिए। तो भगीरा ऐसा कह रहा है। गुड सेड द यंग वुल्फ्स who were always hungry, listen to Bagheera, the cub can be bought for a price, it is the law, speak them। तो बाकी के वुल्फ जो हमेशा भूखे रहते हैं उन लोग बोले छोड़ दो उसे, जैसे भगीरा कह रहे हैं वैसे सुनो, और इस मैन कब को छोड़ दो, वो हम पर बहुत भारी पड़ेगा, अगर यही लॉ है तो उसे छोड़ दो। To kill a naked cub is a shame. Besides, he may make better sport for you, and when he is grown, Bhalu has spoken on his behalf। तो अब भालू उस मैन कब के बिहाफ में बात कर रहा है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक छोटा सा बच्चा को हम लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर क्या पता वो बड़े होने के बाद हमारे किस काम आ जाए। Now to Bhalu's words, I will add one bull and a fat one newly killed, not half a mile from here. If he will accept the man's cub according to law, it is difficult। तो अब भालू बोल रहा है मैं इसमें एक बुल और एक फैट वन, एक बुल जो मर गया, न्यूली उसे कोई मारा है, वो हाफ अ माइल के दूरी पे है। अगर वो इसे एक्सेप्ट करता है लॉ के लिए, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात हुई। There was a clamor of scores of voicing says, what's the matter? He will die in the winter rains. He will scorch in sun. What harm can a naked frog do us? Let him run with the pack. Where is the bull Bagheera? Let him accept it. And then came Akela, deep bay, crying, look well, oh wolves. So there was a loud noise of scores of voice saying, क्या बात है, अगर वो विंटर में मर जाएगा, विंटर्स की रेंज में मर जाएगा,
और ये धूप से वो मर जाएगा। वॉट हार्म कहना, अब बोल रहे कि ये छोटा सा बच्चा हमारा क्या कर सकता है, वो हमारे लिए क्या डेंजरस हो सकता है, आने दो उसे पैक में। वो बुल बगीरा कहाँ गया, उसे भी इसे एक्सेप्ट करने दो। एंड देन अकेला डीप बे क्राइंग, अब वो बोल रहा है लुक वेल। अब फिर से उन लोग का मतलब दे वे इतने मगन हो गए हम लोग डिस्कशन में कि अब वो चिल्ला रहा है कि अपने आसपास देखो, अच्छे से देखो। Mowgli was still deeply interested in the pebbles, and he did not notice when the wolves came and looked at him one by one. At last they all went down the hill for the dead bull, and the only Akela, Bagheera, Bhalu and Mowgli's own bulls were left. मोगली अभी छोटा बच्चा था, वो किड, तो उसे तो वो पेबल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसे तो क्या हो रहा कुछ भी पता नहीं। वो तो ये भी नोटिस नहीं किया कि वो बुल्स आके उसे एक के बाद एक आके देख रही हैं। और एट लास्ट वो सारे नीचे जाकर वो जो मरी हुई बुल को देखने जा रहे थे। तो उसके साथ कौन था, तो ओनली अकेला, बगीरा और भालू एंड मोगलीज ओन वुल्फ्स थे। बाकी सब जो बड़े वुल्फ्स थे उन लोग सब उस डेड बुल को देखने गए थे। शेर खान रोज स्टिल इन द नाइट एंड फॉर ही वाज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम। शेर खान बहुत ही गुस्से में था, वो अभी भी चिल्ला रहा था। वो इसलिए गुस्सा था कि मोगली को उन्होंने उसे दिया नहीं। Hey, roar well, said Bagheera under his whiskers, for the time will come when this naked thing will make you roar to another tune, and I know nothing of a man. तो बगीरा बोल रहा है रोर वेल, इसे उस शेर खान को अच्छा से तुम चीखो, अच्छा से रोर करो अंडर योर विस्कर्स, पर इसके जो दाढ़ी में विस्कर। फॉर द टाइम, जब टाइम आएगा यही तुम पे भारी पड़ेगा, यही तुम्हारे रोर को एक दूसरा आवाज़ देगा। ये नेकेड कब भी तुमको ठीक करेगा। आई नो नथिंग ऑफ, मुझे कुछ नहीं पता इंसानों के बारे में बताइए, मुझे लग रहा है कि ये तुम पे भारी पड़ेगा। ये किस बगीरा शेर खान को कह रहा है। इट वॉज वेल डन, सेड अकेला, मैन एंड देयर कब्स वर वेरी वाइज, दे मे बी हेल्प इन अ टाइम। अब अकेला कह रहा है बहुत अच्छा बोले तुम, मैन और उसकी कब्स जो बहुत समझदार होता है, वो कब हमें मुश्किल वक्त में हेल्प कर दे हमें पता नहीं। ट्रूली अ हेल्प इन अ टाइम ऑफ नीड for none can hope to lead the pack forever, said Bagheera. Truly, जो मदद हमें जो मुश्किल वक्त में चाहिए और इस पैक को लीड करे, बहुत ही ज़रूरी है। Akela said nothing. He was thinking of the time that comes to every leader of every pack when his strength goes from him to get feeble and feeble, till at last he is killed by the wolves and a new leader comes up to be killed in his turn. तो अकेला कह रहा है, अकेला कुछ बोला नहीं। वो सोच रहा है कि हाँ ये तो है ही, जैसे टाइम आता है तो हर लीडर बदलता ही है। अगर जैसे जैसे वो लीडर गेट्स फ्लीबर एंड फ्लीबर तो उसे तो चेंज होना ही पड़ता है। टिल एट द लास्ट ही इज किल्ड बाय द वुल्व्स, अ न्यू लीडर कम्स अप टू टिल एट द लास्ट, वो जब तक उसे कोई मार नहीं देता तो न्यू लीडर तो आता ही है उसके बाद, जब तक उसकी बारी नहीं आ जाती मरने का। Take him away, he said to Father Wolf, and train him as befits one of the free people. Father Wolf ने बोला ले जाओ इस मैन कब को और उसे अच्छे से ट्रेन करो, उसे हम फ्री पीपल में एक जैसा बना दो, उसे पूरी तरह से जंगल के रूल्स लॉस सब सिखा दो। एंड दैट इज़ हाउ मोगली वॉज एंटर्ड इनटू द सिनोई वुल्फ पैक फॉर द प्राइस ऑफ अ बुल एंड वन ऑन भालू गुडवर्ड। और इसी तरह से मोगली जो है वुल्फ के फैमिली में घुसा, उसके बदले में उसे एक मरी हुई बुल को देना पड़ा उन लोगों को। और भालू जो उसके बारे में हमेशा से सपोर्टिव था, उसके बारे में हमेशा अच्छा बोलता था। किसके बारे में? मोगली के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द चैप्टर, read it nicely, thoroughly understand it. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video.